1000 میٹر کی 8 چوٹیاں فتح کرنے کے علاوہ ایک سال کے دوران 8000 میٹر کی 4 چوٹیاں سر کی تھی۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا علی صدپارہ کی گمشدگی پر اظہار تشویش۔ آئس لینڈ کے وزیر خارجہ کا بھی شاہ محمد قریشی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزراء خارجہ کا کوہ پیماؤں کی گمشدگی پر اظہار تفتیش۔ شاہ محمود قریشی نے آئس لینڈ کے وزیر خارجہ کو سرچ آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ K2 مہم جوئی لاپتہ علی صدپارہ اور ٹیم کی تلاش۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ عمران خان اور آرمی چیف معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں۔ موسم کی صورتحال سازگار نہ ہونے کے باعث مشن آسان نہیں ہے۔ کوہ پیماؤں کی واپسی کے لیے قوم سے دعاؤں کی اپیل ہے۔ علی صدپارہ کی بحفاظت واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دوسری جانب آئس لینڈ کے وزیر خارجہ اور شاہ محمود قریشی میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر خارجہ نے انہیں لاپتہ کوہ پیماؤں کی کھوج کے لیے جاری ریسکیو سرچ آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آئس لینڈ کے وزیر خارجہ نے کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے کوششوں پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیریں بے سود ہو گئیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 53 انسانی زندگیاں نگل گیا۔ اموات کی تعداد 11,967 ہو گئی۔ مزید 1,340 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 5,54,000 افراد کرونا وائرس میں مبتلا۔ 5,10,000 افراد صحت یاب۔ 32,514 مریض زیر علاج۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں مہلک وائرس سے 5,54,474 شہری متاثر ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران 36,954 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 32,514 ایکٹیو کیسز ہیں۔ ملک بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 5,10,242 ہے۔ کرونا کیسز کے سب سے زیادہ تعداد صوبہ سندھ میں 2,50,688 ہے۔ پنجاب میں 1,60,580، خیبر پختونخوا میں 80,0363، بلوچستان میں 18,854 ہے۔ آزاد کشمیر میں 9,199 مریض، گلگت بلتستان میں 4,916، جبکہ اسلام آباد میں مریضوں کی تعداد 41,934 تک جا پہنچی۔ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 23,20,000، مریض 10,63,00,000 ہو گئے۔ امریکہ میں 4,73,000، برازیل میں 2,31,000، بھارت میں 1,65,000، میکسیکو میں 1,65,000، روس میں 76,000، فرانس میں 78,000، برطانیہ میں 1,12,000 اور سعودی عرب میں 6,397 اموات۔ دنیا میں کرونا کے 7,79,80,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے اور 2,58,96,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 4,73,528 اموات ہو چکی ہیں اور 2,75,19,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,55,028 اور 1,08,27,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 2,31,059 اور 94,97,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ کار سرکار میں مداخلت حلیم عادل شیخ کو مہنگی پڑ گئی۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران سرکاری ملازمین پر حملے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ FIR میں 70 ساتھی بھی نامزد۔ مقدمے میں اقدام قتل اور مالی نقصان پہنچانے کی دفعات بھی شامل۔ کراچی کے میمن گوٹ پولیس اسٹیشن میں تحریک انصاف کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ سمیت ان کے 60 سے 70 ساتھیوں کے خلاف سرکاری کام میں مداخلت، پتھراؤ اور توڑ پھوڑ، اقدام قتل، اسلحہ کے زور پر اغوا، مالی نقصان، سرکاری ملازمین پر حملے سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے ہفتے کی شب کورنگی کے
के रिहायशी ठेकेदार मोहम्मद अयूब की मदहियत में हलीम आदिल शेख और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा इल्जाम दर्ज किया है। मुद्दई ने अपने बयान में पुलिस को बताया है कि डिप्टी कमिश्नर जिला मलेर के 3 जनवरी 2021 को जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन पर अमल दरामद के लिए सुलंगी स्टॉप के करीब तजावुजात हटाने का काम शुरू किया तो दरमियान हलीम आदिल शेख अपने दिगर 60 से 70 कारकुनों के हमरा आए जो मुसल्लह थे। उन्होंने हैवी मशीनरी पर पथराव किया, शॉल के शीशे तोड़े और कार सरकार में मुदाखलत करते हुए मुलाजमीन पर हमला आवर हो गए। इस दौरान पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की वर्दियां फाड़ दी और इन पर डंडे लाठियां बरसाईं। हमलावरों ने मुलाजमीन और मजदूरों को असला के जोर पर अपने साथ ले जाने की भी कोशिश की। वाकये का मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए, जबकि दूसरी जानिब सिंध असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख का दावा था कि सिंध हुकूमत ने सियासी इंतकाम में कानूनी फार्म हाउसेस गिराए। जवाब पीपल्स पार्टी से भी फौरन आया। मुर्तजा वहाब का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसे पीटीआई ओपोजिशन लीडर के खिलाफ कार्रवाई का रंग दे रही है। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख और दीगर अफराद से मुतल्लिक महकमा दाखिला ने नया हुक्म जारी कर दिया, जिसके तहत उन्हें जेल से रिहाई के बाद जेल में ही तामीर शुदा नए कमरों में रखा जाएगा। महकमे दाखिला के हुक्मनामे में कहा गया कि अहमद उमर शेख, फाहद नसीम अहमद, सैयद सलमान साकिब, शेख मोहम्मद आदिल और अब्दुल हमीद भुगटी को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में जेल से रिहा कर दिया गया है। ताहम इन तमाम अफराद को सेंट्रल जेल के अहाते में ही नए तामीर शुदा कमरों में रखा जाएगा। अहमद उमर शेख और दीगर अफराद को मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। तमाम अफराद अपने अहल खाना से रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात कर सकेंगे, जबकि हिरासत में रखे अफराद के अहल खाना की सहूलत के लिए वफाकी हुकूमत के कसरे नास में 5 कमरे भी मुख्तस होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ऑर्डिनेंस के तहत सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए हो सकेंगे। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद जारी कर दिया गया। ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय से मशरूत किया गया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन आइन की शक 226 के मुताबिक राय हुई थी तो सीक्रेट वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सेनेट इलेक्शन को इलेक्शन एक्ट के तहत करार दिया तो ओपन वोटिंग होगी। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 की शक 122 में तरमीम की गई। ऑर्डिनेंस के तहत पार्टी सरबराह वोट दिखाने की दरखास्त कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह या उसके नुमाइंदे को वोट दिखाने का पाबंद होगा। सदर मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज के इंतहाई अहम मुलाकात। इत्तेफाक किया कि आईनी तरमीम के बगैर सेनेट इलेक्शन का तरीकाकार तब्दील नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मुस्तरद नहीं किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ऑर्डिनेंस के मामले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। फजल रहमान ने कहा कि अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ओपन बैलेट के इक़दाम की शदीद मुखालफत का फैसला कर लिया। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज के इंतहाई अहम मुलाकात। इत्तफाक किया कि आईनी तरमीम के बगैर सेनेट इलेक्शन का तरीकाकार तब्दील नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने कहा सेनेट इलेक्शन में पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मुस्तरद नहीं किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा ऑर्डिनेंस के मामले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे।
तो दूसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए ऑर्डिनेंस घबराहट का सबूत है। हुकूमत ने अपनी एमपीएज पर ही अदम एतमाद कर दिया। ऐवान बाला के इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि पीडीएम के फैसले पर हुकूमत की घबराहट पूरे मुल्क के सामने है। वजीर आजम को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद जमहूरी तरीक़ाकार है। हम अपना जमहूरी हथियार एहतजाजन इस्तेमाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अपने एमपीएस के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने एमएनएस के ऊपर हुकूमत ने एक किस्म का अदम एतमाद करा दे दिया। वो पूरे मुल्क को बता रहे हैं कि हम अपना मेंबर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और पूरे मुल्क को बता रहे हैं कि हमारा जो हुकूमत का मेजॉरिटी है उस पे हम इस हद तक अनकंफर्टेबल है कि हम ऐन वक्त में इलेक्शन से पहले हर हरबा इस्तेमाल कर दे, ताकि जैसे 2018 का जनरल इलेक्शन में इदारे को मुतनाज़ा बना के धांधली हुआ था, हम अब सेनेट इलेक्शंस में भी मुख्तलिफ इदारे को मुतनाज़ा बना के यहाँ भी अपने लिए इमरान खान के लिए धांधली करवाया जाए। मैं आपके सामने इनका हर एक जो स्टेप लिया गया है उस पे बात करना चाहूंगा। आप सबको पता है हर मुल्क में, हर जमहूरी मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जमहूरी तरीका होता है कि आप अपना आइन में अगर तरमीम करना चाहते हैं या अगर आप कानून साजी करना चाहते हो, एक पार्लिमानी प्रोसीजर होता है। हुकूमत ने अगर इतना बड़ा कदम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तब्दीली लाने का फैसला वाकई किया है तो फिर उतनी संजीदगी के साथ इस पे कोशिश करना चाहिए था। हुकूमत ने ना इस पे कोई कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की, ना मुख्तलिफ पार्टी से कोई संजीदा बात की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं 26 मार्च के बाद 27 मार्च होगा और कुछ नहीं। दिसंबर जनवरी में कुछ ना कर सकने वाली अपोजिशन मार्च में भी नाकाम होगी। अपोजिशन जमातों को एक दूसरे पर एतबार है और ना ही इनमें इत्तेफाक है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि 2023 तक मार्च आते और जाते रहेंगे, हुकूमत कायम रहेगी। ओपोजिशन जमातों को एक दूसरे पर एतबार है और ना ही इनमें इत्तफाक। चौधरी सरवर का कहना था कि सेनेट इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट से वोट चोरी का खात्मा हो जाएगा। इत्तेहादी जमातें और अवाम हुकूमत के बयानिए के साथ खड़े हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मजीद कहा कि अवाम ने तहरीक इंसाफ को 5 साल का मैंडेट दिया है। लॉन्ग मार्च से हुकूमत का खात्मा ओपोजिशन की गलत फहमी के सिवा कुछ नहीं। सियासी मुखालफिन सबर के साथ 2023 के इंतखाबात का इंतजार करें। सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी ही कामयाब होंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुल्क का मुस्तकबिल तालीम की फ़रोग़ से वाबस्ता है। बड़ी क्लासों के निसाब में सीरतुल नबी के मज़मून को शामिल करने का मकसद तलबा को इस्लामी शार से रोशनास करना है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नॉलेज इकॉनमी के फ़रोग़ के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने तालीम के फ़रोग़ के हवाले से मुख्तलिफ मनसूबों और इक़दामात में पेशरफ़्त से आगाह किया। डॉक्टर अताउर रहमान ने बायोटेक्नोलॉजी और दीगर जदीद अलूम के फ़रोग़ के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल तालीम के फ़रोग़ से वाबस्ता है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से तालीमी इस्लाहात का मकसद न सिर्फ तालीम का फ़रोग़ बल्कि तलबा की शख्सियात में आला इक़दार को उजागर करना है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुताल्लिक हमारे पास कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा का कहना था कि हुकूमत सेनेट इंतखाबात में शफाफियत कायम रखने और वोटों की खरीदो फरोख्त हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ओपन बैलेट इंतखाबात चाहते हैं ऐसा शफाफ निज़ाम लाया जाए जिसमें करप्शन के बाजार बंद हो जाएं। वजीर खारजा ने कहा पाकिस्तान की तारीख गवाह है, सेनेट के साबका इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने शिकायत मिलने पर अपने 20 अरकान सूबाई असम्बली को पार्टी से बेदखल कर दिया था, जबकि
जबकि पीडीएम एक तरफ हुकूमत की जाली हुकूमत कही और दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेकर इसी जाली असम्बली में जाना चाहती है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मरियम नवाज को इमरान फोबिया हो गया है। पीडीएम जितना मर्जी लॉन्ग मार्च या एहतजाज कर ले तहम लुटेरों से मुफाहमत नहीं हो सकती। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ के मीडिया ट्रायल की बातें वजीर आजम हाउस में हुई। डीमेल की स्टोरी के सहूलतकार इमरान खान और शहजाद अकबर थे। बरतानवी अदालत ने तमाम इल्जामात के सबूत मांग लिए। तर्जुमान नून लीग ने कहा डेली मेल की स्टोरी प्लांटेड थी। इमरान खान अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जामात लगाते हैं। 14 जुलाई 2019 को एक स्टोरी शाया हुई थी डेविड रोज साहब की तरफ से, और जिसके जो सहूलतकार थे उस स्टोरी के और जो स्टोरी लिखवाई गई थी वो इमरान साहब और शहजाद अकबर। मैंने आपको याद होगा कि एक और रीज़न आज की प्रेस टॉक प्रेस क्लब में करने का ये है कि जब ये डेली मेल की स्टोरी 14 जुलाई 2019 को आई थी तो मैंने इसी प्रेस क्लब में एक प्रेस टॉक की थी और उसमें कुछ शवाहिद दिखाए थे कि ये स्टोरी की जो असल जहां इस स्टोरी के दिमाग की जो इख्तरा है वो वज़ीर आज़म हाउस में ये स्टोरी डिस्कस हुई और किस तरह शहबाज शरीफ को का मीडिया ट्रायल किया जाए, उनको डीफेम करने की कोशिश की जाए और इल्ज़ामात लगाए जाएं। मैंने इसी प्रेस क्लब में प्रेस टॉक की थी जुलाई 14 2019 को। तो कल रात को जो डेली मेल की स्टोरी के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने डेली मेल को यूके हाई कोर्ट में सू किया हुआ था और उसका स्टेज 1 जो होता है जहां जज साहब को ये पिटिशन दी थी कि ये डेफेमेशन हुई है और डेफेमेशन सूट की जो एप्लीकेशन पिटिशन थी उसके ऊपर कल फैसला आया है और जिसमें इस्टेब्लिश करना था कि ये कौन से ग्रेड की डेफेमेशन है और उस पर जज साहब का जो फैसला आया है वो जो है वो चेज लेवल। दूसरी जानिब शहजाद अकबर कहते हैं लंदन हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ के हक में फैसला नहीं आया। मरियम औरंगजेब इतना झूठ बोलती हैं कि जवाब देने में वक्त लगता है। केस जीतना तो दूर की बात, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी मुकदमा ट्रायल में जाएगा, डेली मेल शवाहिद पेश करेगा। शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है चाचू ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, करप्शन की है तो भुगतना पड़ेगा। जो है डेली मेल के ही लॉयर्स की तरफ से इनिशिएट की गई कि पहले ये वाजे कर दिया जाए कि हमने किस चीज़ का जवाब देना है और किस चीज़ का जवाब नहीं देना। अब मीनिंग हेयरिंग जो है इसका मकसद क्या होता है और इस हेयरिंग पे होना क्या है, इसमें इस बात का फैसला करना था कि एक आम आदमी, कोई भी रीडर है चाहे वो बरतानिया में है या पाकिस्तान में है, जब वो इस आर्टिकल को पढ़ता है, जो ये आर्टिकल डेली मेल का डेविड रोज की तरफ से लिखा हुआ था, तो उसको क्या समझ में आता है, वो क्या तासुर लेता है और एक आम आदमी ने क्या तासुर लिया। तो जो जज ने कहा कि एक आम आदमी ने, क्योंकि जज ने भी सिर्फ आर्टिकल पढ़ा और उसने कहा कि आम आदमी ने जब ये आर्टिकल पढ़ा तो उसने ये तासुर लिया कि शहबाज शरीफ और इनका खानदान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। ये उस आर्टिकल ने तासुर दिया कि शहबाज शरीफ और उसका खानदान करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। और दूसरा तासुर इस नए आर्टिकल ने यह दिया कि अली इमरान ने, जो कि दामाद है शहबाज शरीफ का, तो इसलिए इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ भी इस काम में मुलविस है। अब आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब ने राजनपुर की तरक्की के लिए 15 अरब के पैकेज का ऐलान कर दिया। मुआवने खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पसमानदा इलाकों की तरक्की बुज़दार हुकूमत का अज़म है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि राजनपुर में यूनिवर्सिटी का क़याम, गर्ल्स डिग्री कॉलेज रुझान, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का ऐलान किया गया है। फाजिलपुर और कोट मिठन में रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल 2 सेंटर, दाजिल और फाजिलपुर के रूरल हेल्थ सेंटर्स की अपग्रेडेशन की जाएगी। मुआवने खसूसी ने बताया कि 300 मिलियन रुपए लागत से 34 वेटरनरी क्लिनिक्स,
सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम के लिए 400 मिलियन, तहसील कॉम्प्लेक्स रुझान के लिए 80 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। 16 मिलियन लागत की जनरल बस स्टैंड का संग बुनियाद रखा गया है, जबकि 88 मिलियन की लागत के लाइफ स्टॉक सर्विसेज ट्रेनिंग सेंटर फाजिलपुर, रख हजमत वाला जामपुर के लिए कंटेनर क्लीनिंग का आगाज किया जा रहा है। फिरदौस आशिकाबान ने कहा कि राजनपुर को साबका हुकूमतों ने जानबूझकर तरक्की के हक से महरूम रखा, मगर वजीर आला उस्मान बुज़दार दूर दराज इलाकों में जाकर आवाम के मसाइल जानने और उनके हल करने के लिए दिन रात कोशा हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं तबकाती निज़ाम तालीम ने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी, न जाने यकसा निसाब तालीम का वादा कब पूरा होगा। गुजरात में तलबा से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि 3 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हाई एजुकेशन के लिए मुख्तलिफ फंड्स में मुसलसल कमी हो रही है। गुर्बत की बुनियाद पर तालीमी इदारों को तकसीम किया गया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि पाकिस्तान की लिबरल और सेकुलर क़यादत का नाकाम हो गई है। मेंबरान असम्बली की पार्लियामेंट के फ्लोर पर वो गालियां सुनाई देती हैं जो गलियों की गुंडे भी नहीं देते। अगर सियासी तौर पर तरबियत याफ्ता अफराद असम्बलियों में जाएं तो कौम को ये तमाशा ना देखना पड़े। इख्तिलाफ और किरदार से आरी लोग कौम पर मुसल्लत हैं। चीनी सफीर कहते हैं यही पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रादर है। तोहफे में दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन मंसूबे के मुताबिक इस्तेमाल की जा रही है। 2 रोज के दौरान तमाम अमूर शेड्यूल के मुताबिक निपटाए गए। चीनी सफीर नोंग रोंग ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसे चीन ने तोहफे में वैक्सीन दी हैं, जो दोनों ममालिक के माबैन आहनी भाईचारे का मसर है। पाकिस्तान ने वैक्सीनेशन के लिए बेहतरीन प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसके तहत 500 सेंटर बनाए गए हैं, जहां एक दिन में 40,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकती है। दोनों ममालिक में वैक्सीन के कमर्शियल सतह पर तबादले के लिए भी बातचीत जारी है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर मोइद यूसुफ कहते हैं पाकिस्तानी सरहद पर जंग वापस नहीं आ सकती, ये पाकिस्तान की रेड लाइन है। जबर के जरिए कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जब मुज़ाकरात होते हैं तो हर एक को लचक दिखाना पड़ती है। मोइद यूसुफ का एक इंटरव्यू में कहना था कि पाकिस्तान के बगैर अफगान अमन मुआहिदा यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। पहले अमेरिका हर वक्त डू मोर कहता था। अमेरिका ने अब अफगान अमन मुआहिदे के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को तस्लीम कर लिया। अमन मुआहिदा अफगान फ्रीकैन के दरमियान और अमेरिका दस्तखती है। मोइद यूसुफ ने कहा कि अफगान में जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। दोहा में बड़ी मेहनत से एक फैसला हुआ। दोहा अमन मुआहिदे में पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। रोज बेंच मार्क तब्दील होगा तो मिसाइल बढ़ेंगे। कोई भी तब्दीली चाहते हैं तो अफगान फ्रीकैन बैठकर फैसला कर लें। DGPR समन राय कहती हैं कि DGPR हमावक्त जिम्मेदारियां अदा करने वाला अहम तरीन इदारा है। DGPR सुमन राय ने अलहमरा में तारुफी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुश्किल तरीन हालात में भी DGPR बेहतरीन सर्विसेज डिलीवरी में मसरूफ रहा है। DGPR जैसे तारीखी इदारे को मॉडर्न दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने का अज़्म लेकर आई हूँ। जदीद तरबीती सेशंस और साजो सामान से DGPR टीम के इस्तेदादकार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। कसूर में ज़ैनब को ज़्यादती के बाद कत्ल करने के वाक़े से दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ऐसा ख़राब हुआ कि हुकूमत को बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए बाकायदा ज़ैनब अलर्ट एक्ट लाना पड़ा, जिसको बाकायदा लागू करने के लिए कसूर में ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। इस पर कसूर से आतिफ मुनीर की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क में बढ़ते हुए जिनसी वाकयात की रोकथाम के लिए कसूर की नन्ही ज़ैनब शीर, जो खुद एक दरिंदे की सफाकियत का निशाना बनी, इसके नाम पर 2020 में ज़ैनब अलर्ट बिल को पुलिस थाना जात में बाकायदा लागू करने के लिए पास किया गया। DPO कसूर इमरान कीश्वर की सरबराही में पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया। पंजाब पुलिस बच्चों के लिए काम करने वाली तंजीम रोशनी और हुकूमत पाकिस्तान के तामन से ज़ैनब अलर्ट ऐप के जरिए बर वक्त FIR और मुतालबा बच्चे की तलाश में जदीद टेक्नोलॉजी को बरवे कार लाते हुए काम करने की मेथड पर
काम करेगी। इसके बाद जिस तरह की वसाइल और सहूलतें और ट्रेनिंग हमारी पुलिस को दी जा रही है, उसके तहत हमारे बच्चे काफ़ी हद तक महफूज होंगे। और दूसरा, जो पहले गवाशुदा बच्चों के बारे में जो हमारा तफ्तीशी निज़ाम था, उसमें जो प्रोसिक्यूशन में कोई कमी कताई थी, वो भी काफ़ी इसमें डेवलपमेंट हुई है। ज़ैनब अलर्ट एक्ट से एक ऐसा डेटाबेस बन जाएगा जिस पर बच्चों का जिनसी इस्तेमाल करने वालों का मुकम्मल डाटा हो। ज़ैनब बेटी जो कि तमाम की बेटी थी, कौम की बेटी थी और वो कसूर से थी, तो उस की कुर्बानी की वजह से ये जो ज़ैनब अलर्ट बिल आया है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। और मॉनिटरिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स और चाइल्ड अब्यूज़ और पीडोफाइल्स के हवाले से ये एक इनकलाबी कदम है। और इसके बाद इंशाल्लाह ना सिर्फ केसेस में कमी आएगी बल्कि कन्विक्शन रेट भी इसका इम्प्रूव होगा। जरूरत इस अमर की है कि पुलिस के साथ साथ हम अपने माशरे में भी तब्दीली का अंसर पैदा करें। साथी रिपोर्टर चौधरी उस्मान रशीद के साथ आतिफ मनीर, TV टुडे न्यूज़। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो के साथ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे। TV टुडे, खबर सबसे पहले।